हम कौन से चैप्टर थे? बेटा अपन लोग चैप्टर 5 कर रहे हैं ना। हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, सुन नहीं रहे थे क्या तुम? मैम मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे एक साथ दोनों माइक चल रहे हैं, उसको देखो जरा। तो क्या करना है? करे हैं, तुमने बोला था करा है, तो मैंने पूछा तुमसे। ओके फाइन, रहने दो, छोड़ो। यस, गौरिक बताओ। फर्स्ट का है वेल सेड, सेकंड का यूज्ड इन बैटल्स, थर्ड का सैक्रिफाइस, फोर्थ का स्लेव और फिफ्थ का स्टोन बोल्डर। ठीक है, देवांश फिल इन द ब्लैंक्स बताओ। Slaves were used for whatever work they must want them to do. Megaliths are found in Deccan, South India, in the northeast and Kashmir. Stone circles or boulders on the surface were used to mark burial sites. D. Portholes were used for entering cests. Pe- People at Inamgaon ate wheat, barley, rice, pulses, millets, peas, and sesame, as well as animal flesh and fruits. ठीक है, फाइन। ये बेटा तुम लोग इसे मेरी तरफ से वार्निंग समझ लो पूरी क्लास के लिए। नेक्स्ट टाइम से मैंने अगर किसी से सवाल पूछा एंड इट टर्न्स आउट कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, आई हैव 5 मार्क्स जो मैं आप लोगों को इसमें देने वाली हूँ। 5 में से सीधे 0 दे दूंगी। फाइनल का पेपर केवल 80 मार्क्स का होगा, याद रखना। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर भी शुरू कर लेते हैं, दैट विल बी एसपीएल। मैम विच चैप्टर? चैप्टर 3 गवर्नमेंट। Would you like to understand the importance of the government in our lives? Click on the Government of India button to find out. This room is so dark. This boy can barely see a thing. Click on the switch to turn on the lights in the room. Ah, that's better. One of the responsibilities of the government is to arrange for the supply of electricity to your city, town or village. Oh no, a thief! Quick, click on the phone to call the police. It is the government's responsibility to prevent crimes and ensure law and order in our society. This boy has a terrible cough. He needs to see a doctor immediately. Click on the local train to help the boy get to the hospital. The boy is going to be fine. The government ensures that citizens have access to affordable health services. The government also makes provisions for public transport. Those men have to be stopped. It's illegal to cut down trees. Click on the Forest Office to inform the forest officer about the illegal tree felling.
It is the responsibility of the government to protect our forests and lakes, as well as the wildlife that lives in them. This girl lives in Bhopal. She has written a letter to her friend in Kochi. Click on the letter box to post the girl's letter. This girl in Kochi is happy to receive a letter from her friend in Bhopal. The government's postal service delivers letters and parcels throughout the country. Besides ensuring law and order and providing public transport and electricity, the government also performs several other functions. In order to perform its functions efficiently, the government frames laws and guidelines that must be followed by all citizens. For instance, there is a law against smoking in public places. This ensures that non-smokers are not affected by the ill effects of passive smoking. It is important to remember that the government cannot enforce laws randomly. The government consists of a small group of representatives who have been elected by us, the people. Once elected, our representatives in the government must frame laws and perform several functions for the good of all communities. India is the 7th largest country in the world. It would be impossible for a single government to administer such a vast nation. In order to fulfill its functions, our country's government divides its responsibilities between national, state, and local levels. At the local level, the municipalities and village panchayats take care of towns, cities and villages. The state government, headed by a chief minister, is responsible for the governance of the entire state. And the parliament at New Delhi, headed by the Prime Minister, is responsible for the administration of the entire nation. Such divisions of power allow greater participation of all people in the governance of our nation. I think the video was quite nicely explained that what are the functions of government. Basically, the government is the system. Vast means बहुत ज़्यादा. Municipal corporation एक वो होता है, सिस्टम होता है हमारी गवर्नेंस का, जिसे हम हिंदी में नगर पालिका कहते हैं. पार्लियामेंट मतलब संसद, जहाँ पर हमारे देश की पूरी लॉ बनती है. I'll keep continuing this. एक बार हम थोड़ा सा और इस चैप्टर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. To help her students understand how a monarchy functions, Miss Sheila crowned Barnali as the queen of the class. As a queen,
Barnali was told she could do as she pleased. However, she needed to act wisely as the good of her subjects was her prime responsibility. Barnali was overjoyed. She ordered the opening of the windows so she could see the sky. The students sitting near the windows protested. They preferred to keep the windows closed to keep out the noise from the street. However, since Barnali had been crowned the queen, the students by the window had no choice but to suffer the noise. Barnali then asked the class to arrange the desks in a circular pattern. This was a difficult task, and several of the students asked Barnali to change her mind. But Queen Barnali was insistent, and the class was forced to obey. Finally, Barnali ordered her classmates to leave the class and go to the playground. That's when Miss Sheila stepped in and brought an end to Barnali's short-lived monarchy. Miss Sheila explained that a country is said to be a monarchy when it is ruled by a king or a queen. As Barnali's rule in the class had shown, a ruler's actions may not always be liked by their subjects, but there was nothing the subjects could do about it. When the class returned after lunch break, Miss Sheila wanted to show them how a democratic nation functioned. She asked the class to elect a class representative. The majority of the class voted for Priya. Miss Sheila explained that as an elected representative of the class, Priya could only carry out steps if a majority of the class approved of her actions. The students sitting under the fans demanded that the speed of the fans be reduced. When Priya sought the opinion of the rest of the class, she found that a few others too were in favor of reducing the speed of the fans. Priya had a solution. She requested students sitting away from the fan to swap seats with those sitting under the fan. The backbenchers immediately agreed. Priya then asked the class if they would like Miss Sheila to continue with the lesson. A majority of the class approved of Priya's decision. Priya requested Miss Sheila to give the class 10 free minutes before the end of the session so that everyone could rehearse for an upcoming school event. This too gained the approval of a majority of the class. Priya had performed admirably as a democratic representative of her classmates. Miss Sheila explained to the class that in a representative democracy, the people rule the country through their elected representatives. In a democratic nation, every citizen above the age of 18 has the right to vote for their representative. This is called universal adult franchise. The elected representatives must work in the interest of the people. If people are unhappy with how their representatives are governing the nation, they can choose to elect new representatives. In this way, a democracy ensures that a country is governed with the approval of all its citizens. Think about it and discuss. Yes, so anything, any question? Democracy
रुको रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। मोनार्की, पहले तुम अपना सब लिख लो, क्योंकि तुम मेरा सुनना तो कुछ चाहते नहीं हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा तुम मीटिंग रिजॉइन कर लो, यहाँ से सब सही है। डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, डिक्टेटरशिप जहाँ पर कोई भी एक अपने मन की सब कुछ करने लग जाता है, आर्बिट्ररी जहाँ पर किसी भी चीज का कोई लॉजिक नहीं होता है, फ्रेंचाइज मतलब कि सभी को यहाँ पर वोट देने का मौका मिलता है। एनीथिंग एल्स? बाकी तुमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। Okay, then I will move ahead. गवर्नमेंट। आपके एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए हमने इसके पीडीएफ नोट्स बना रखे हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम नीचे कमेंट्स में दे देंगे और आप हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। एज यूजुअल एकदम सिंपल। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नीड फॉर अ गवर्नमेंट, कि हमें गवर्नमेंट की जरूरत किस चीज के लिए पड़ती है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे टास्क हैं जो गवर्नमेंट कंप्लीट करती है, like making decisions, taking actions on social issues, postal और railways जैसी essential services रन करना, country की boundaries को protect करना, maintaining peaceful international relations, food और good health facility अपने citizens के लिए maintain करना, ensure करना, aid और assistance organize करना उन लोगों के लिए जो किसी natural disaster से affected हैं। इस टाइप के बहुत सारे roles जो हैं वो government play करती है। In fact, कोई भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं या जब क्राइम होता है तो उनके ऊपर जो रूलिंग्स दी जाती हैं वो कौन देता है? कोर्ट्स। और कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ एसेंशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। इसको एक लॉजिकल फॉर्मेट में समझते हैं। जब ह्यूमन बींग्स साथ में रहते हैं और साथ में काम करते हैं एक सोसाइटी में, सो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिस बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सके, राइट? ऐसे रूल्स होने चाहिए जो सब पे अप्लाई हो सके। तो ये रूल्स बनाएगा कौन और इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये काम करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। गवर्नमेंट्स वो डिसीजन लेती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं जिसके बेसिस पे लोग एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा केओस होगा और जिस हिसाब से एक ऑर्गेनाइज लाइफ हम लोग फॉलो करते हैं वो मुश्किल हो जाएगा। इंडिया में गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं सुप्रीम कोर्ट, भारत पेट्रोलियम, इंडियन रेलवेज। इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको गवर्नमेंट मैनेज करती है। और गवर्नमेंट सिर्फ एक सिंगल लेवल पे नहीं होती है। देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स पे काम करते हैं, जैसे लोकल लेवल जो हमारे विलेज या टाउन में लोकली काम करते हैं। फिर देयर इज स्टेट लेवल विच कवर्स द इंटायर स्टेट ऑब्वियसली, एंड देन फाइनली द नेशनल लेवल जो पूरी कंट्री से रिलेट करता है। एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। और ये कैसे हुआ था? जब आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया गया था और उसको 2 स्टेट्स में बनाया गया था, देन तेलंगाना वाज फॉर्म्ड। इसी तरह से 31 अक्टूबर 2019 इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डेट, क्योंकि इस दिन पे जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जैसा कि आपको अभी तक के हमारे डिस्कशन से समझ में आ गया होगा कि मेकिंग लॉज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ड्यूटीज। गवर्नमेंट जो है ये लॉज बनाती है और हर कोई जो उस कंट्री में रह रहा है वो इन लॉज को फॉलो करता है।
और इसी बेसिस पे गवर्नमेंट फंक्शन करती है। गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड इट आल्सो हैज द पावर टू एनफोर्स दीज डिसीजंस, क्योंकि अगर एनफोर्स करने का पावर नहीं होगा तो डिसीजन बना के कोई फायदा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भी मालूम है कि एक लॉ है कि एनीवन हु इज ड्राइविंग अ व्हीकल, उसके पास उस व्हीकल को ड्राइव करने का लाइसेंस होना चाहिए। ये तो लॉ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, कैसे इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स इस लॉ को फॉलो करें। अगर वो ये लॉ नहीं फॉलो करते हैं तो उन पे फाइन लगाया जाता है या उनको पनिश किया जाता है। और इस तरह से गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि ये जो लॉ बना है दैट एवरीवन शुड हैव अ लाइसेंस बिफोर ड्राइविंग अ व्हीकल, ये इम्प्लीमेंट हो सके। डिसीजन लेने का पावर तभी इफेक्टिव है जब उसको इम्प्लीमेंट करने का पावर हो, और इन्हीं लॉज की वजह से गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज इफेक्टिव। इनफैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, लोग भी इंश्योर कर सकते हैं कि लॉज फॉलो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी दिखता है कि किसी प्लेस पे लॉ नहीं फॉलो किया जा रहा है, सो दैट पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट। वहां पे पेटिशन फाइल करी जा सकती है और देन कोर्ट विल मेक श्योर कि लॉज फॉलो हो। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज? किसने डिसाइड किया डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज? ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की गवर्नमेंट है उस कंट्री में। पहले पढ़ते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है, और इसके लिए फिर से वही क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने अभी पूछा था। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज? डेमोक्रेसी में ये पावर जो है ये लोग देते हैं गवर्नमेंट को। इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। हाउ? थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शंस में लोग वोट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और उसको इलेक्ट करते हैं। ये इलेक्टेड पर्सन जो होता है ये लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और ये लोग जो इलेक्ट किए जाते हैं ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है ये एक्शंस लेती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करती है और डिफेंड करती है लोगों के सामने, जिससे लोगों को समझ में आए कि ये उनके इंटरेस्ट में लिया जा रहा है। सो बेसिकली इफ यू सी, द पावर इज विद द पीपल। उन्होंने जिसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, दैट पर्सन हैज द राइट टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज फॉर द पीपल। दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था मोनार्की। मोनार्की में जो मोनार्क होता है, मतलब किंग या क्वीन, इज कॉल्ड द मोनार्क। सो द मोनार्क हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्क के पास कुछ स्पेशल लोग हो सकते हैं जिनसे वो इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करें, लेकिन हमेशा फाइनल डिसीजन जो होता है दैट रिमेन्स विद द मोनार्क। फाइनल डिसीजन लेने का पावर हमेशा मोनार्क के पास होता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी में द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन दैट डिसीजन टू द पीपल, लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता। किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड देयर डिसीजंस टू द पीपल। वो जो चाहे कर सकते हैं और लोग कुछ नहीं कह सकते। सो इस तरीके से डेमोक्रेसी और मोनार्की अलग होते हैं। ये था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। इसमें हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस एंड कन्वे। मैम व्हाट्स द चैनल नेम? एक मिनट रुको। द चैनल नेम इज कीप इट सिंपल। आई कैन शेयर यू द लिंक। मैम एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार में एक ही की बात का जवाब दे सकती हूँ। डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जो डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं, और ये डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर अथॉरिटी होती है पीपल के पास, दैट दे कैन चूज देयर गवर्निंग लेजिस्लेशन। सोशल इशू मतलब ऐसे इश्यूज जो सोसाइटी को कंसर्न करते हैं। नेशनल डिजास्टर मतलब नेशनल लेवल पे कोई आपदा विपदा या किसी तरीके का कोई डिजास्टर आ जाता है। केओस डिजास्टर का एक बड़ा फॉर्म। व्हाट आर लॉ? लॉ आर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न अस। लाइसेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो कोई भी गाड़ी चलाने लग जाएगा जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है। दैट कैन रिजल्ट इन पीपल डाइंग। एनफोर्स मतलब उसको फोर्स में लाना। इलेक्ट करना मतलब इलेक्शन करना या चुनना बाय द मीन्स ऑफ वोटिंग। बिकॉज मोनार्क्स आर नॉट इलेक्टेड, वो ब्लड के बेसिस पर उन्हें पोजीशन मिल जाती है। मोनार्की में इलेक्शन नहीं होता। पीपल्स वॉइस इज नॉट हर्ड। प्रोटेस्ट मतलब कि जहां पर आप किसी चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं एंड यू पुट अप अ रेजिस्टेंस।
चाइना इज नॉट अ मोनार्की, चाइना सोशलिज्म है, ब्रिटेन में मोनार्की है। मैम राजतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोनार्की। मैम चाइना में भी तो राजतंत्र है। जब मैं बोल रही हूँ नहीं है। कौन है चाइना का राजा, बताओ मुझे। Any other question, anyone? हाँ सही कह रहे हो देवांश, इट मीन्स विरोध। Anything, anybody? नो मैम। नो मैम। हे गाइस, आज हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3 पार्ट 2 करने जा रहे हैं, व्हाट इज गवर्नमेंट। पार्ट 1 में हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया था और आज वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया एक डेमोक्रेसी है और ये एक बहुत ही लंबी और इवेंटफुल स्ट्रगल के बाद अचीव हुआ है। इसके पहले ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे, हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, लेकिन एक लंबी और इवेंटफुल स्ट्रगल के बाद हमें वो फ्रीडम मिला और इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाया। वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने स्ट्रगल किया है अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी बनाने के लिए। बाय फार डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी का मेन फीचर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इज people have the power to elect their leaders. So the main power lies with the general people. So in a way democracy is a rule by the people. क्योंकि जो baseline है, जो representative select कर रहे हैं, वो कौन है? People. The basic idea is people rule themselves by participating in the making of these rules. Representatives, जो reps होते हैं, वो अपना manifesto बताते हैं लोगों को और उस basis पे लोग decide करते हैं कि उनको किसको elect करना है, किसके ideas और किसका working style उनको पसंद आ रहा है। So the rule is by the people. Present times में democratic governments को representative democracies भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? Because people do not participate directly in the government. वो अपना representative choose करते हैं एक election process से और ये representatives मिलके लोगों के लिए decisions लेते हैं। So people are not directly involved in the government. एक representative choose हो रहा है जो democracy को run कर रहा है। So democratic governments are also called representative democracies. और एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हर डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल एलिमेंट होता है, अगर वो नहीं है तो यू कैन नॉट कॉल द गवर्नमेंट अ डेमोक्रेसी, और वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक कंट्री में एवरी अडल्ट इज अलाउड टू वोट। पास्ट में ऐसा एक टाइम था जब विमेन और जो पुअर थे उनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था। सो दैट वाज नॉट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, क्योंकि वो अडल्ट्स थे बट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, राइट? So in the earliest forms of democracy, only educated men who owned property were allowed to vote. So women or poor, propertyless या uneducated people were not allowed to vote. Adult hona was not the only criteria. There were other criteria which had to be fulfilled, and therefore it was not universal adult franchise. Even India में भी before independence only a small group of people was allowed to vote. और फिर कई लोगों ने ऐसा डिमांड किया कि हर अडल्ट को वोट करने का राइट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी ने भी यंग इंडिया जर्नल में 1931 में इस इशू पे लिखा था। द आइडिया वाज कि हर अडल्ट को राइट होना चाहिए वोट करने का और अपनी गवर्नमेंट सिलेक्ट करने का। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं थी, यूएसए और यूरोप में भी वुमेन एंड द पुअर हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। उनको भी वहां पे वोट करना अलाउड नहीं था। मैम आपकी वो प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही। बेटा बिकॉज आई स्टॉप द, मेरी सुन लो, सवाल पूछा है, जवाब सुन लो।
मैंने रोक दिया है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मैंने अभी देखा दैट द टाइम इज अबाउट टू बी ओवर। हम ये वीडियो पूरा फिर से शुरू कर लेंगे, डू नॉट वरी। जापानीज किंग का मुझे नाम नहीं पता है, बट आई कैन सर्च इट फॉर यू। अकीहितो, दिस से अकीहितो। But he is also a former emperor of Japan. Did he give that मैम up? जापानी ऐसी कंट्री है जिसमें सिर्फ अभी मोनार्की फॉलो किया जाता है? बहुत सारी कंट्रीज में मोनार्की हैं, जापान इज वन ऑफ देम। सिविक्स जो है एसपीएल को पहले कहा जाता था। स्ट्रगल मतलब संघर्ष, माइनॉरिटी विच इज समथिंग नॉट इन द मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब बहुत ज्यादा लोग, माइनॉरिटी मतलब बहुत कम लोग। इवेंटफुल मतलब जहां कुछ काम का हुआ है। रेजिम मतलब जिसका राज चल रहा है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जहां पर थ्रू द मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेटिक राइट्स यूज किए जाते हैं। पॉलिटिकल रेजिम मतलब जहां पर पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिकल राज चल रहा है। प्रोटेस्ट और दंगे में डिफरेंस ये होता है, प्रोटेस्ट में आप किसी चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाते हो, दंगे में आप जो है इनकंट्रोलेबल वायलेंस करते हैं। जो अभी मैंने वीडियो दिखाया था, आई विल रीस्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड साई राम। थैंक यू एंड साईराम मैम। ओके, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग अक्षत। थैंक यू। थैंक यू Thank you, ma'am. Okay, thank you all of you. I am quite healthy, but since you are worrying so much, thanks a lot. बेटा बाकी की चीज, थैंक यू, थैंक यू साईराम एंड थैंक यू मैम। बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. राम, थैंक यू।